مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور ببرکت نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام۔ اور میں آج ایک بار پھر خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خداوند نے آج ایک بار پھر مجھے یہ موقع دیا کہ خداوند کے زندہ پاک کلام پر میں بات کر سکوں۔ اور میں آج کافی دنوں کے بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے کہ بھائی ہیں جن کا نام زاہد بٹی ہیں، اور آج میں نے ان کا کومنٹ پڑھا۔ کافی دنوں سے انہوں نے کومنٹ کیا ہوا تھا، لیکن آج اس کو میں نے پڑھا اور یہ کہتے ہیں کہ میرا طلب کراچی سے ہے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بات انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا اور وہ اس سوال کو لے کر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ کیوں انہوں نے یہ سوال کیا؟ انہوں نے اپنی اس بات کو بتایا کہ پاسٹر نوید ملک صاحب کے چرچ سے ان کا تعلق ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی یسوع مسیح کو باپ کہتے آ رہے ہیں اور ہماری فیملی بھی یسوع مسیح کو باپ ہی کہتی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر پاسٹر نوید ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یسوع مسیح کو باپ نہیں کہہ سکتے، تو انہوں نے بتایا کہ اس چیز کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ ہوتا ہے نا، جو لوگ اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتے تو وہ اس طرح کی باتوں کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ایمان میں مضبوط نہیں ہوتے کہ ہم یسوع مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب نوید ملک صاحب وہ تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس لحاظ سے کہا کہ یسوع مسیح کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ مجھ سے بات کی تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس بات کو تمام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ اس بات کو لے کر بہت سارے لوگ ڈسٹرب ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا کہ یسوع مسیح کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کہہ سکتے ہیں تو کیوں کہہ سکتے ہیں، اگر نہیں کہہ سکتے تو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس کے بارے میں دیکھیں اور اس بات کو ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں کہ بائبل مقدس ہمیں کیا کہتی ہے، ہم یسوع مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ اب باپ کو دیکھیں، باپ ہم کہتے کس کو ہیں؟ باپ ہم اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم وجود میں آتے ہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر ایک چیز کا ہمیں پروف ملتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں، کس لحاظ سے؟ کیونکہ ہم کو پیدا کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اب ایک اور آیات پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں، جیسے یوحنا کی انجیل میں کلام کے بارے میں لکھا کہ ابتدا سے ہی کلمہ خدا کے ساتھ ہے اور اسی کلمے کے وسیلہ سے دنیا پیدا ہوئی، تو ہم پیدا ہوئے یسوع مسیح سے، اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئے، کیونکہ میں نے شروع میں کیا بتایا، جس کے ذریعہ سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اس کو ہم باپ کہتے ہیں، یعنی ہمارا جو جسمانی باپ ہے، ہم اس کے ذریعے سے اس دنیا میں آتے ہیں اور ہم اس کو باپ کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم یسوع مسیح نے کیونکہ اس دنیا کو خلق کیا اور ہم بھی اسی کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے، تو اس لحاظ سے ہم یسوع مسیح کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور بھی بہت ساری ایگزامپلس دوں گا، لیکن تھوڑا سا اس کو میں اور زیادہ ڈیٹیل سے چاہتا ہوں اس کو ایکسپلین کروں۔ جیسے میں نے بتایا
पहला ग्रंथियों 1:24 के अंदर यीशु मसीह को खुदा की हिकमत कहा गया है। अब इसी हिकमत को जब हम इंसाल 8वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पता चलता है कि यही हिकमत इस दुनिया को बनाए जाने से पहले ही मौजूद थी। यानी इस दुनिया में अभी कुछ भी नहीं था, कुछ भी सोच विचार नहीं था, लेकिन खुदा की हिकमत यानी यीशु मसीह उस वक़्त भी मौजूद थे। यानी खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले मौजूद थे। और फिर उसके बाद मकाशवा की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 4वीं आयत के अंदर लिखा है, और लुदीकिया की कलीसिया को ये लिख कि जो मैं और जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है। अब यहाँ पर खुदा की खलकत का मबदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, यानी कि यीशु मसीह खुदा की शुरुआत, यीशु मसीह खुदा का शुरू है, यानी खुदा की खलकत का शुरू है। जो खुदा ने पैदा किया वो यीशु मसीह से ही शुरू हुआ, यानी सब कुछ यीशु मसीह राज है इस दुनिया को बनाने का, इस दुनिया को पैदा करने का। यीशु मसीह से ही ये दुनिया वजूद में आई, सारी इंसानियत, सारी खलकत उसके ज़रिया से इस दुनिया के अंदर वजूद में है। फिर इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं यसाया की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत के अंदर लिखा है, ये पेशन गोई की है यसाया नबी ने कि हम यीशु मसीह को बाप कह सकते हैं नहीं, क्या ये नहीं, इस लिहाज से यसाया की किताब 9वां बाब उसकी 36वीं आयत के अंदर लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद पैदा हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। तो यहाँ पर भी हमें पेशन गोई के अंदर ये बताया जा रहा है कि यीशु मसीह बाप होगा इस दुनिया का, जो हमको बख्शा गया, जो इस दुनिया का बादशाह है वो यीशु मसीह ही है, वो हमारा बाप है। तो हम इस लिहाज से यीशु मसीह को आगे चलकर मैं बताता हूँ कि किस लिहाज से हमें यीशु मसीह को बाप नहीं कहना चाहिए। और अभी मैं बता रहा हूँ जो जिस बारे में कि यीशु मसीह को हम बाप कह सकते हैं, तो वो किस एतबार से कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ज़रिए से हम इस दुनिया में आए और यीशु मसीह ही इस खलकत का मबदा है, उसी से दुनिया पैदा हुई, सारी इंसानियत जिस लिहाज मसीह को अपना बाप कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए रिश्तों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बेटा, बेटी, कोई किसी को कह सकता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, मरकस की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो यहाँ पर एक मफलूज था जिसको यीशु मसीह के पास लाया गया, और जब यीशु मसीह के पास लाया गया तो यीशु मसीह ने उसको अच्छा किया, चंगा किया, और यीशु मसीह ने उसे कहा, जा बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको अपना इस तरह से नहीं कि मुझसे पैदा हुआ, यानी जो जैसे फिजिकली तौर पर हम अपने बाप को कहते हैं, उसको अपना बेटा कहा। तो अगर यीशु मसीह बेटा कह सकता है हमें, तो हम यीशु मसीह को बाप क्यों नहीं कह सकते? यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। फिर उसके बाद मरकस की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर लिखा है, एक 12 बरस से बीमार थी औरत जिसके खून जारी था 12 बरस से, उसके बारे में लिखा है, उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और इस बीमारी से बची रह। तो यहाँ पर मरकस की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर यीशु मसीह उस 12 बरस से जिस औरत का खून जारी था, और इसको जो हिस्टोरियन है, काफ़ी लोगों ने इसको बयान किया है इस तरीके से, तहकीक से, कि ये जो औरत थी यीशु मसीह से कम से कम 5 से 10 साल बड़ी थी। तहकीक करके उन्होंने बताया
मैंने काफ़ी समय पहले इसके बारे में पढ़ा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऐसा भी लिखा है तहकीक करके कि ये औरत जो थी यीशु मसीह से 5 से 10 साल बड़ी थी, तो यीशु मसीह को तो इसे अपनी बेटी नहीं कहना चाहिए था, बल्कि इज़्ज़तन तौर पर कुछ और लफ्ज़ से पुकारना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपनी बेटी कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने उसको पैदा किया। पैदा इस एतबार से नहीं, जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि जैसे सारी दुनिया को यीशु मसीह ने खलक किया, उस एतबार से इतने तौर पर यीशु मसीह ने उसको अपनी बेटी कहा। तो जब यीशु मसीह हमें अपनी बेटी या अपना बेटा कह सकते हैं, तो हम यीशु मसीह को बाप क्यों नहीं कह सकते? तो इससे हमें इन रेफरेंस से हमें नज़र आता है, जैसे मैंने शुरू के तौर पर ही कहा था, शुरुआती तौर पर ही कहा था कि हम बाप उसको कहते हैं जिसका हमें पैदा करने में, जिसके ज़रिए से हम वजूद में आते हैं, उसको हम अपना बाप कहते हैं। तो हम यीशु मसीह का हमें पैदा करने में, हमें ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को पैदा करने में उसका हाथ है, और हाथ ही नहीं बल्कि उसके ही वसीला से वजूद में आए और उसी के वसीला से ये सब कुछ है। तो इस एतबार से हम यीशु मसीह को बाप कहते हैं और यीशु मसीह को हम बाप कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह को हमें बाप क्यों नहीं कहना चाहिए, खुदा बाप क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर आती है, बाप और खुदा बाप पर आती है। लोग इस बात को नहीं समझते। लोग जब कहते हैं ना खुदा बाप, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, जबकि नवीद मलक साहब जो है वो भी तस्लीस को मानते हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरीके से समझाया होगा, एक्सप्लेन किया होगा तस्लीस को लेकर, तो जिस वजह से शायद वो भाई जो थे वो गलत समझ गए थे, तो उन्होंने इस तरह से समझाया जैसे तस्लीस को जो अच्छे से समझते हैं, तस्लीस के कानून को, खुदा के ज़ात को अच्छे से समझते हैं, तो वो इस चीज़ को समझते होंगे, तो वो इस चीज़ को आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम यीशु मसीह को क्यों बाप नहीं कह सकते, किस लिहाज से हम बाप नहीं कह सकते। जैसे तस्लीस के अंदर खुदा बाप है, और खुदा बेटा है, और खुदा रूहुल कुद्दस है, यानी ये तीनों कानून अलग अलग हैं। जब हम खुदा बाप की बात करते हैं तो वो खुदा बाप अलग है, जब हम खुदा बेटे की बात करते हैं उसकी ज़ात के अंदर तो वो अलग है, जब हम रूहुल कुद्दस की बात करते हैं तो रूहुल कुद्दस ज़ात के अंदर अलग है। तो जब हम इन तीनों को कहें कि रूहुल कुद्दस बाप है, खुदा बाप है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को कहें यीशु मसीह खुदा बाप है, तो वो खुदा बाप नहीं है। अगर हम ये खुदा बाप को कहें कि वो रूहुल कुद्दस है, तो भी सही नहीं है। अगर हम यीशु मसीह को कहें कि वो खुदा बाप है, तो भी सही नहीं है, क्योंकि तस्लीस के अंदर जब हम बात करते हैं तो तीनों अलग अलग हैं, और तस्लीस के अंदर इन तीनों अशखास को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं और जानते भी हैं कि ये तीनों अशखास अलग अलग हैं अपनी शख्सियत के अंदर। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना है कि तस्लीस के हिसाब से हमें खुदा बाप को अलग और खुदा बेटे को अलग और खुदा रूहुल कुद्दस को अलग, तीनों शख्सियत अलग अलग हैं। तो इन तीनों शख्सियत को हमने समझना है तस्लीस के अंदर कि ये तीनों शख्सियत अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग होते हुए ऐसा नहीं कि ये तीनों अलग हैं, जैसे मेरे अंदर सोल स्पिरिट और माइंड है और मैं आप लोगों के सामने ये अकेला नजर आ रहा हूँ, ऐसे ही खुदा भी है, लेकिन वो नजर नहीं आता। तो ऐसा मत समझिएगा कि कहीं पर खुदा अलग अलग है, नहीं, बल्कि वो ज़ात के अंदर ऐसे है। उन खुदा के तीन कानून है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बयान करती है। तो इसलिए हम यीशु मसीह को अपना बाप कह सकते हैं, किस लिहाज से कि उसने हमें पैदा किया, उसके ज़रिए से हम इस दुनिया में हैं, इस हिसाब से हम यीशु मसीह को अपना बाप कह सकते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन्स थी लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न है इस तरह की, तो इन सारी कन्फ्यूज़न को मैं आगे भी, इस तरह के बहुत सारे कमेंट आते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता, इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। बहुत सारे इंटरेस्टेड ऐसे सवालात हैं
جن کو میں چاہتا ہوں رپورٹ کروں تاکہ پوری دنیا کے لوگ ان باتوں کو جانیں اور سمجھیں، تاکہ خداوند کے لوگ خداوند کے زندہ پاک کلام کو پوری دنیا جانے، اور سب لوگ سبھی مسیحی خدا کے کلام کے بارے میں جانیں، تاکہ دوسروں تک خدا کے کلام کی روشنی کو پہنچا سکے، تاکہ کسی کے اندر بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کنفیوژن بالکل نہیں رہے۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے